انسانی تاریخ میں صاحب کتاب اور صاحب شریعت صرف دو امتیں مانی جاتی ہے، اور ان دونوں امتوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کا تعلق ہے، جنہیں دنیا کی قدیم قوموں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور جن پر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ احسان کیے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلق رکھتی ہے۔ چنانچہ اگر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی بات کی جائے تو ان کا آغاز حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوتا ہے، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کے اسی لقب سے ان کی پوری اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 16 دفعہ آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اپنے آباء و اجداد کی طرح توحید کی تبلیغ کی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی میں بنی اسرائیل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں آپ علیہ السلام کے 12 بیٹوں کا ذکر آتا ہے، جنہیں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا جد امجد بھی مانا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ فلسطین یا کنعان کی سرزمین پہ آباد تھے۔ دوستو، یہود کے مطابق آپ علیہ السلام کے یہ 12 بیٹے یہودیت کے ماننے والے تھے، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سب سے اہم حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جنہیں ان کے بھائیوں نے حسد کرتے ہوئے ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ یہ پورا واقعہ قرآن پاک کے سورہ یوسف میں موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کا نام روبن تھا، جو بنی اسرائیل کے قبیلہ روبن کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ اگرچہ روبن حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش میں مکمل طور پر شامل تھا، لیکن اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرنے کا مشورہ دیا اور ایک طرح سے ان کی جان بچانے کی کوشش کی۔ دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام شمون تھا، جسے بنی اسرائیل کے قبیلہ شمون کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ بائبل کے مطابق شمون تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ نڈر انسان تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے میں بھی سر فہرست تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینے کا مشورہ دیا تھا، اور کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے والا بھی شمون ہی تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تیسرا بیٹا لاوی تھا، جسے بنی اسرائیل کے قبیلہ لاوی کا جد امجد بتایا جاتا ہے۔ لاوی کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس کی نسل سے اللہ تعالیٰ کے کئی انبیاء آئے، جن میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا نام سر فہرست ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے کا نام جودا یا یہودا تھا، جسے بنی اسرائیل کے قبیلہ یہودا کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ موجودہ دور کے یہودیوں کو انہیں کے نام سے یہودی کہا جاتا ہے، اور کچھ مورخین کے مطابق آج دنیا میں بسنے والے زیادہ تر یہودی خاندان انہی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان 12 بھائیوں اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جبکہ صرف یہودا کی اولاد کو یہود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودا کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء مبعوث کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا 5واں بیٹا اشکار قبیلہ اشکار، چھٹا بیٹا زبلون قبیلہ زبلون، 7واں بیٹا دان قبیلہ دان، 8واں بیٹا نفتلی قبیلہ نفتلی، 9واں بیٹا جاد قبیلہ جاد، اور 10واں بیٹا عاشیر بنی اسرائیل کے قبیلہ عاشیر کا جد امجد بتایا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے اہم 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے، جو قبیلہ جوزف اور قبیلہ بنیامین کے جد امجد تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ مصری حکومت میں شامل تھے تو آپ مصر میں آباد تھے،
लेकिन उनके बाकी 11 भाई अपने वालिद के साथ फलस्तीन में आबाद थे। चुनांचे फलस्तीन में कहत पेल जाने की वजह से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बाकी बेटों के साथ मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गए। यहाँ इन 12 खानदानों ने खूब तरक्की की और इनकी तादाद में भी बेपनाह इजाफा हुआ और कुछ ही अरसे में ये लोग 12 कबीलों की शक्ल में आ गए, जो मुकामी आबादी के लिए एक खतरे की घंटी थी, क्योंकि ये 12 खानदान मिस्र की हर चीज को कंट्रोल करने लगे थे। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद मिस्र के फिरौन ने पूरी बनी इसराइल यानी इन 12 कबीलों को गुलाम बना लिया और अगले 400 साल तक बनी इसराइल पे बदतरीन जुल्म ढाए गए। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उन पर एक एहसान किया और इन्हीं में से एक कबीला लावी की नस्ल से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इनमें माबूस किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के 12 कबीलों के तकरीबन 60,000 लोगों को फिरौन के चुंगल से आज़ाद करा लिया और इन्हें उनकी प्रॉमिस लैंड फलस्तीन की तरफ लाने लगे। रास्ते में इन पर अल्लाह ताला ने बेपनाह एहसान किए, जैसा कि उनके लिए आसमान से मन्नो सलवा उतारा गया और 12 कबीलों के लिए पत्थर से 12 पानी के चश्मे जारी किए गए। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उन लोगों को फलस्तीन की मुकामी आबादी के साथ जिहाद करने का हुक्म दिया तो इन लोगों ने साफ इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में एक अजाब की सूरत में ये लोग तकरीबन 40 साल तक मिस्र के सहराई सीना में भटकते रहे। इसी दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने तौरात नाजिल की, जिसके बाद बनी इसराइल के इन 12 कबीलों को एक उम्मत का दर्जा दे दिया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके जानशीन बनी इसराइल को फलस्तीन पहुंचाने में कामयाब हो गए और मुकामी आबादी को शिकस्त देते हुए इन लोगों ने फलस्तीन पर अपनी पहली इसराइली सल्तनत की बुनियाद रखी। बनी इसराइल के 12 कबीले अपने अपने मखसूस इलाकों में आबाद हुए, जैसा कि आप मैप पर देख सकते हैं। दोस्तों, मौजूदा दौर के यहूदी बनी इसराइल की इस पहली सल्तनत को एक यहूदी सल्तनत समझते हैं और इसी थ्योरी की बुनियाद पर ये लोग पूरे फलस्तीन को अपनी जागीर मानते हैं। इस सल्तनत पर हुकूमत करने वाले सबसे अहम बादशाह कबीला यहूदा से ताल्लुक रखने वाले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जो एक ही वक्त में बनी इसराइल के बादशाह और अल्लाह ताला के नबी भी थे। उनका जिक्र कुरान पाक में 16 मरतबा आता है, जिन पर अल्लाह ताला ने अपनी दूसरी आसमानी किताब ज़बूर नाजिल की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद इसराइली सल्तनत के अगले बादशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, जो अपने वालिद की तरह एक ही वक्त में नबी और बादशाह भी थे। आप अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ बनी इसराइल बल्कि जिन्नात पर भी हुकूमत किया करते। इस्लामी रिवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ने इसराइली सल्तनत के दारुल हुकूमत यरूशलेम में मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस की तामीर शुरू की। कहा जाता है कि उनके हुक्म पर जिन्नात दूर दूर से पत्थर और समंदर से मोती निकाल कर लाया करते, लेकिन यहूदी इस बात से इख्तिलाफ करते हैं। उनका यह मानना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद की बजाय एक टेम्पल तामीर किया, जिसे ये लोग फर्स्ट टेम्पल का नाम देते हैं। यही वजह है कि मौजूदा दौर में ये लोग मस्जिद अक्सा को ढाके अपना टेम्पल बनाना चाहते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे रहबाम सल्तनत इसराइल को मुत्तहिद रखने में नाकाम रहे। उनके दौर में तमाम इसराइली कबाइल में खाना जंगी शुरू हो गई, जिसके नतीजे में सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। बनी इसराइल के ये 10 कबीले, जिन्हें आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इन 10 ने शुमाल यानी नॉर्थ के इलाके में अपनी किंगडम ऑफ इसराइल की बुनियाद रख ली, जबकि जनूब यानी साउथ में सिर्फ 2 कबीलों कबीला यहूदा और कबीला बेन्यामीन के लोग आबाद थे, जिसे किंगडम ऑफ यहूदा के नाम से जाना जाता था, और यरूशलेम का इलाका यानी जनूबी सल्तनत यहूदा के हिस्से में आया। बनी इसराइल के इस तकसीम का फायदा पड़ोस की एम्पायर्स ने उठाया। चुनांचे उस वक्त की एक सुपर पावर अशूरी सल्तनत ने शुमाली सल्तनत यानी किंगडम ऑफ इसराइल पे हमला किया और इस सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी और यहाँ बसने वाले 10 कबीलों को जिलावतन कर दिया।
दोस्तों यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन 10 कबीलों का उस वक्त से लेके आज तक कुछ पता ना चल सका, लेकिन यहूदियों के नजदीक एक अकीदा आज भी बरकरार है जिसके मुताबिक ये 10 कबीले एक न एक दिन जरूर वापस आएंगे। मौर्रिखीन के मुताबिक ये 10 कबीले दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद हुए और लोकल कल्चर्स में इतना रच बस गए कि उनकी आइडेंटिटी करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह की एक थ्योरी बरसगीर में बसने वाले पठान कबीलों के बारे में भी पाई जाती है, जिसके मुताबिक पश्तून बनी इसराइल के इन 10 कबीलों की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस बारे में हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता और जदीद साइंस भी इस बात को प्रूव करने में नाकाम है। चुनांचे अब बनी इसराइल के सिर्फ 2 कबीले, कबीला यहूदा और बेन्यामीन ही बाकी बचे थे जो सल्तनत यहूदा में आबाद थे, और अब इस सल्तनत के लोगों को बनी इसराइल की बजाय यहूदी कहा जाने लगा। यहूदियों की इस छोटी सी सल्तनत पर बाबिलियों के एक बादशाह नबूकदनेस्सर ने हमला किया और बनी इसराइल के इन 2 कबीलों को भी इस इलाके से निकाल दिया। नबूकदनेस्सर ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई गई मस्जिद या यहूदियों के नजदीक उनका फर्स्ट टेम्पल भी तबाह व बर्बाद कर दिया। लेकिन इस हमले के तकरीबन 150 साल बाद ये दोनों कबीले दोबारा इस इलाके में वापस आ गए और इन्होंने अपना टेम्पल भी दोबारा तामीर कर लिया, जिसे फिर सेकंड टेम्पल का नाम दिया गया। इसी दौरान अल्लाह ताला ने उन पर कई अंबिया भेजे, लेकिन ये लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी में इतना आगे जा चुके थे कि अंबिया को कत्ल कर देते। चुनांचे अल्लाह ताला ने इन पर कबीला यहूदा से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माबूस किया, जिन्हें बनी इसराइल का आखिरी नबी माना जाता है। लेकिन यहूदियों ने न सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार किया, बल्कि उन्हें झूठा करार देते हुए सलीब पर चढ़ाने और उन्हें कत्ल करने का इंतजाम किया, और उनके मुताबिक वो अपनी इस साजिश में कामयाब हो गए। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सलीब पर चढ़ने से पहले ही आसमान पर उठा लिया था। यहाँ आपको बताता चलें कि इसी दौर में ईसाईयत का जन्म भी हुआ कि जब बनी इसराइल से चंद लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा तस्लीम कर लिया। दोस्तों, यहूदियों को उनकी सरकशी की छोटी सी सजा सन 70 ईस्वी में उस वक्त मिली कि जब एक रोमी जनरल टाइटस ने फलस्तीन पर हमला किया। टाइटस ने एक ही दिन में 1,30,000 यहूदियों को कत्ल किया और यहूद का सेकंड टेम्पल भी गिरा दिया। इसके साथ साथ यहूदियों को फलस्तीन की सरजमीन से निकल जाने का हुक्म दिया, जिसके बाद यहूदियों के बचे कुछ लोग पूरी दुनिया में फैल गए, जिसे यहूदियों का डायस्पोरा कहा जाता है। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहूदियों के 3 कबीले मदीना में आबाद थे, जिनके नाम बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर और बनु किंका था। यहाँ आपको बताता चले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद बनी इसराइल को उम्मत मुस्लिमा के मनसब से माजूल कर दिया गया और एक नई उम्मत यानी उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मनसब पर फाइज कर दिया गया। यही वजह है कि यहूदी अपना सबसे बड़ा दुश्मन उम्मत मुहम्मदी को समझते हैं। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 2000 साल से तमाम अंबिया इन्हीं में मबूस हुए। इनके साथ साथ 3 आसमानी किताबें भी इन्हीं में नाजिल हुई, लेकिन अब ये मनसब अरबों के पास जा चुका था।